students, how are you all? I hope all of you are doing really well. Today we will learn about the triangle and its properties. In previous class, you have already read various type of triangles and their properties. Let us recall in brief. Previous class में भी हमने triangle और उसकी properties के बारे में पढ़ा था, तो थोड़ा सा इसको recall कर लेते हैं. Okay. First, what is triangle? A plane figure bounded by three line segments is called a triangle. A triangle has 6 elements, namely 3 sides and 3 angles. In the adjoining figure, A, B, B, C and C are 3 sides and angle A, angle B and angle C are 3 angles. Triangle जो 3 line segment से बना होता है, okay? इसके 3 sides हैं, right? और 3 ही इसके angles हैं, okay? A, B and C are known as the vertices of triangle ABC. A, B, C जो है आपके बच्चों, ये vertices हैं. ओके नाउ वेरियस टाइप ऑफ ट्राइंगल्स आपके पास हैं, नेमिंग अकॉर्डिंग टू द साइड्स. अब साइड्स के अकॉर्डिंग हमने ट्राइंगल्स को आपका कैटेगराइज किया गया. नंबर 1 इज इक्विलेटरल. अ ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड इक्वल्स इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. इन द एडजॉइनिंग फिगर, triangle PQR is an equilateral triangle since all 3 sides are equal and all 3 sides are equals to 6 centimeter. तीनों sides equal हैं, so ये आपका होगा equilateral triangle. Number 2, isosceles triangle. A triangle having any 2 sides equal is called an isosceles triangle. In the adjoining figure, triangle ABC is an isosceles triangle since AB is equals to AC is equals to 5 cm. अब वो triangle जिसकी 2 sides equal हैं, जैसे आप देख सकते हैं 2 sides equal है ना, so ये isosceles triangle है. And 3, scalene triangle. A triangle having all sides of different length is called a scalene triangle. In the adjoining figure, triangle MNP is a scalene triangle. तीनों sides देखिए अलग अलग हैं, so this is scalene triangle. Okay. Now naming according to the angles. अब angles के basis पे भी triangle को classify किया गया है. Number 1 is acute triangle. A triangle whose each angle is acute means less than 90 degrees called an acute angle. In the adjoining figure, triangle ABC is an acute triangle. देखिए तीनों ही angle आपके 90 से कम हैं, right? So acute angled triangle. Okay. Number 2 is obtuse triangle. A triangle whose one angle is obtuse means more than 90 degree is called an obtuse triangle. In the adjoining figure, triangle PQR is an obtuse angled triangle. क्योंकि यहाँ पे एक angle जो है ना आपका angle क्यों वो 90 से ज़्यादा है, right? 3, right triangle. A triangle whose one angle is a right angle equal to 90 degree is called a right triangle. So in the adjoining figure, triangle MNP is a right triangle since angle N is equals to 90 degree. अब वो triangle जिसमें एक angle आपका होगा क्या बच्चों 90 degree का, okay, उसे हम कहते हैं right triangle. Okay. Now median of a triangle. A median of a triangle is a line segment joining a vertex to the midpoint of the side opposite to that vertex. A triangle has 3 medians. And all 3 medians of a triangle are concurrent, that is passing through a same point. Triangle का जो median होता है एक line segment होता है जो उसके vertex को जोड़ते हैं to the midpoint of the opposite to that vertex. So एक triangle की आपके 3 medians होते हैं बच्चों इस तरह से. देखिए आपका ये triangle है A, B, C, okay, B, E एक आपका median हो गया. Then आपके पास है C, F और एक A, D. 3 medians है. Okay, so these are the 3 medians. And अब इस फिगर में देखिए QS आपका SR के इक्वल है, so PS जो है ना बच्चों आपका क्या है मीडियन है. Okay, altitude of a triangle. An altitude of a triangle is the line segment drawn from vertex perpendicular to the opposite side of vertex. Every triangle has 3 altitudes. Okay, so 3 altitudes आपके given है AD, BE and CF जो आपके अगले पेज पे आएंगे. एल्टीट्यूड देखिए बच्चों ट्राइंगल का क्या होता है एक लाइन सेगमेंट होती है जो उसके वर्टेक्स से ड्रॉ की जाती है और जो परपेंडिकुलर होती है ऑपोजिट साइड ऑफ वर्टेक्स. ओके, इन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल एल्टीट्यूड विल लाई आउटसाइड द ट्राइंगल. अब ऑब्ट्यूज ट्राइंगल की बात करें तो एल्टीट्यूड हमेशा बच्चों आपका बाहर होगा ट्राइंगल के. ओके, टिप्स. एन एल्टीट्यूड इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स टू इट्स ऑपोजिट साइड. एन एल्टीट्यूड माइट बी आउटसाइड द ट्राइंगल द फिगर गिवन अलोंग साइड. Here AD, this is, see, AD is perpendicular to BC. अब क्योंकि obtuse angled triangle है तो अभी क्या पढ़ा था कि इसका जो altitude होगा वो triangle के बाहर होगा. Okay, AD, here AD is the altitude drawn from the vertex A. A से draw किया गया ना to base
BC of triangle ABC. Okay, angle sum property of a triangle. Theorem, the sum of three angles of a triangle is 180 degree. ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, इसे हमें प्रूव करना है. ओके, सो गिवन क्या है, आपके पास ट्राइंगल है ABC एंड वी हैव टू प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. दैट इज एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क करना पड़ेगा. ड्रॉ CE पैरेलल टू CE को पैरेलल करना पड़ेगा AB के, एंड BC को हम थोड़ा सा प्रोड्यूस कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे D तक. प्रूफ, वी नो दैट सम ऑफ द all angles formed on the same side of a line at a given point is 180 degree. So we have, अब देखिए आपके हमने देखा है कि जो सम ऑफ एंगल्स हैं जो सेम साइड लाइन के होते हैं 180 डिग्री होता है. सो देखिए ये तीनों एंगल्स जो है, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, तीनों का ही सम बच्चों कितना हो जाएगा 180 डिग्री. ओके, दिस इज इक्वेशन 1. नाउ एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 1. एंगल 4 की इक्वल एंगल 1 है. Alternate angle 1 is equals to angle 4. Alternate angles, interior angles. फिर आपके angle 2 आपके angle 5 के बराबर है. angle 2 angle 5 के बराबर क्यों है? Because corresponding angles हैं. Okay, so now substitute करना है. angle 4 is equals to angle 1 और angle 5 को is equals to angle 2 in equation 1. तो equation 1 ये है. एंगल 4 की जगह हमने बच्चों क्या रखना है, एंगल 1, क्योंकि दोनों इक्वल है, और एंगल 5 की जगह हम क्या रखेंगे, एंगल 2. सो देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 हो गया ना 180 डिग्री. हमने ये प्रूव कर दिया. और यू कैन से एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. राइट, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. इफ वन ऑफ ए एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द अदर टू angles, find the measure of angles, give also special name to triangle. इन्होंने कहा है कि अगर एक एंगल ट्राइंगल का वो इक्वल है दोनों एंगल्स के सम के बराबर, सो हमें एंगल्स का मेजर निकालना है. ओके, सो लेट मेजर ऑफ, हम लेट कर लेंगे एंगल B. लेट द एंगल बी x. लेट द एंगल बी x डिग्री. सो जो मेजर है ऑफ सम ऑफ द अदर टू एंगल्स विल बी x डिग्री ऑल्सो. वन एंगल प्लस सम ऑफ टू एंगल्स. एक एंगल है आपके पास x और सम ऑफ टू एंगल्स बोला है, उसने कहा कि सम ऑफ टू एंगल्स भी क्या सेम है, दैट मीन्स x डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये सम है बच्चों, आप सोचेंगे दो, एक्चुअली ये सम है, सम ऑफ टू एंगल्स. ठीक है, यहाँ पे गिवन है. सो 2x is equals to 180 degree and x is equals to 180 degree by 2. That is 90 degree. Okay, और आपसे ये भी पूछा है ना, स्पेशल नेम बताना है. सो ये क्या है आपका राइट ट्रायंगल. क्यों? क्योंकि उसमें एक एंगल जो है ना बच्चों वो कितने का है, 90 डिग्री का है. ओके, एग्जाम्पल 2 देखते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन x इन द फॉलोइंग ट्रायंगल. दो एंगल्स गिवन है, angle P plus angle Q plus angle R is equals to 180 degree by angle sum property. Okay, angle P is 50 degree, angle Q is x, angle R is 70 degree. Okay, 50 plus 70 is 120 degree plus x is equals to 180 degree. x हो जाएगा बच्चों आपका 180 degree minus 120 degree. So x हो जाएगा आपका 60 degree. Okay, so value 60 आ गई यहाँ पे. इसी तरह से आपने बाकी जो अननोन वैल्यूज हैं इसी तरह से निकालना है. ओके, और बाकी एग्जाम्पल्स की भी प्रैक्टिस आपने करनी है खुद से. ओके, एग्जाम्पल 4. ईच ऑफ द टू एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज ट्वाइस द थर्ड एंगल. फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल. इन्होंने क्या कहा है कि जो दो इक्वल एंगल्स है ना आइसोसेलेस ट्राइंगल की, वो थर्ड एंगल के क्या है, ट्वाइस हैं. सो थर्ड एंगल को हम लेट करेंगे. लेट द थर्ड एंगल बी, थर्ड एंगल बी x डिग्री. ओके, एंड जो आपके इक्वल एंगल्स हैं वो क्या है, बोला है ना ट्वाइस है. इक्वल एंगल आपके हो जाएंगे, इक्वल एंगल आपके होंगे 2x डिग्री. नाउ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, x डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस 2x डिग्री. दो बार क्यों लिखा है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में आपके इक्वल होते हैं ना दो साइड्स. 2 plus 2 4 plus 1 5x is equals to 180 degree.
सो x की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री को 5 से डिवाइड करेंगे सो 36. ओके, सो 36 एक वैल्यू आ गई एंड 2x डिग्री में आप x की वैल्यू पुट करेंगे 72 डिग्री. सो एंगल्स कितने हो जाएंगे बच्चों आपके 36 डिग्री, 72 डिग्री एंड 72 डिग्री, क्योंकि दो आपके इक्वल थे. ओके, सो इसी तरह से आपने बाकी एग्जाम्पल्स की भी प्रैक्टिस करनी है. राइट, exercise is given over here, do it yourself. Okay, exterior angle of a triangle and its property. Triangle का exterior angle और उसकी property क्या कहती हैं देखते हैं. Let a triangle ABC produce side BC to D. BC को produce किया है D तक. Okay, ABC इस तरह से आपका triangle है ABC. ओके, BC को D तक प्रोड्यूस किया, साइड BA को E एंड साइड AB को F तक प्रोड्यूस किया, BC को D तक, BA को प्रोड्यूस करेंगे E तक और AB को प्रोड्यूस करेंगे F तक. इफ एंगल ACD, ये जो है ना ACD एंगल, दिस वन, ये आपका बच्चों क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल है ना, ट्राइंगल से बाहर एक्सटीरियर एंगल. सो ये एक्सटीरियर एंगल है, देन एंगल A एंड B आर नोन एज ऑपोजिट इंटीरियर एंगल टू इट. अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये एंगल ऑपोजिट एंगल है, एंगल A एंड एंगल B. एंड इफ एंगल CAE मीन्स अगर ये वाला एंगल एक्सटीरियर है तो फिर आपके ऑपोजिट एंगल्स कौन से हो गए, B एंड C, ये दोनों. ओके, एंड अगर CBF यानी CBF दिस एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है तो फिर ऑपोजिट एंगल्स इसके क्या हो गए, एंगल A एंड C, opposite interior angles हो गए. Okay, now exterior angle property theorem. If a side of a triangle is produced, then the exterior angle is so formed is equals to the sum of the two interior opposite angles. अगर जो ट्राइंगल की साइड ऐसे प्रोड्यूस की जाए तो जो एक्सटीरियर एंगल है आपका जो बनता है वो इक्वल होगा किसके बच्चों, सम ऑफ द टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स. दिस इज द थ्योरम. गिवन ट्राइंगल ABC एंड BC प्रोड्यूस टू D, एक ट्राइंगल दिया गया और उसको प्रोड्यूस किया गया D तक. हमें प्रूव करना है कि जो एंगल ACD मीन्स दिस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू एंगल A प्लस B. राइट, सो प्रूफ में लेट A इज इक्वल्स टू एंगल 1, B को हम 2 मानेंगे, C को हम एंगल 3 मानेंगे और एंगल ACD को हमने 4 माना. ओके, नाउ ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC angle A plus angle B plus angle C is equals to 180 degree by angle some property of triangle. Okay, or you can write angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equals to 180 degree. This is equation 1. Okay, अब देखिए ये आपके पास 3 और 4 ये लीनियर पेयर बना रहे हैं ना, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. लीनियर पेयर हमेशा 180 डिग्री का होता है. ओके, दिस इज इक्वेशन 2. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या मिलेगा, देखिए ये भी 180 डिग्री और ये भी 180 डिग्री, दोनों इक्वल हो गए. एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4. ओके, और देखिए बच्चों एंगल 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि जब एंगल 3 को इस तरफ लेके आएंगे, इसको उधर लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा. राइट, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4 जो हमें प्रूव करना था. एंगल 1 इज एंगल A, angle 2 is angle B and angle 4 is angle ACD. Okay, tips. An exterior angle of a triangle is greater than each of its interior opposite angles. Exterior angle triangle का हमेशा उसके interior angles का जो opposite interior angles हैं उनके सम से ज़्यादा होगा. ओके, तो चलिए अब हम इस थ्योरम का यूज करेंगे इस एग्जाम्पल में. फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन x एंड y इन द फॉलोइंग फिगर्स. सो देखिए आपके पास आपको x भी निकालना है और आपको y भी निकालना है. अब ट्राइंगल के अंदर हमें दो एंगल्स तो कम से कम पता होने चाहिए, राइट, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है. तो देखिए ये आपका एक्सटीरियर एंगल जो है 115 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल A प्लस एंगल B. 115 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल A x है और एंगल B है 65 डिग्री. ओके, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना बच्चों वो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है. सो 115 में से आप 65 माइनस करेंगे, यू विल गेट x. 5 minus 5 is 0 and 11 minus 5 6 is 5. सो x की वैल्यू बच्चों आपके पास आ गई 50 डिग्री, ये हो गया 50 डिग्री. अब आप y को निकाल सकते हैं ना.
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए हमने निकाला 50 डिग्री, एंगल बी आपके पास 65 डिग्री और एंगल सी आपके पास वाई हमें निकालना है। सो दोनों को प्लस करेंगे, आपके पास कितना आ जाएगा 115 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो वाई हो जाएगा बच्चों आपका 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। सो वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 65 डिग्री। ओके एक तरीका तो ये है निकालने का, दूसरा आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं y प्लस 115 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। सो y की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री, तो वैल्यू आपकी सेम ही आएगी। ओके सो दिस इज मेथड 1 एंड दिस इज मेथड 2। तो जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप उसे कर सकते हैं। सो सिमिलरली आपने बाकी पार्ट्स में क्या करना है बच्चों, जो आपके पास अननोन फिगर्स हैं, अननोन जो आपके पास x एंड y है, उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ओके सो डू इट योरसेल्फ। एग्जाम्पल 2 देखिए बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एंगल x डिग्री इन द फॉलोइंग फिगर्स। देखिए x आपका एक्सटीरियर एंगल है, सो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ओके सो x डिग्री आपका आ जाएगा 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। ओके सो सिमिलरली यू विल डू अदर पार्ट ऑल्सो। ओके एग्जाम्पल 5, an exterior angle of a triangle is 120 degree और उसके जो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं वो रेशियो में 2:3 के। सो फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। ओके सो लेट द एंगल्स बी, लेट द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स बी, रेशियो में दिया गया है ना बच्चों, सो 2x एंड 3x। ओके 2x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 120 डिग्री, क्योंकि देखिए आपने ये जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ना एक्सटीरियर एंगल की, उसमें क्या था कि एक्सटीरियर जो एंगल है वो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। सो ये 5x आ जाएगा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। सो x इज इक्वल्स टू 120 बाय 5। सो x की वैल्यू हो जाएगी बच्चों आपके पास 24 डिग्री। ओके सो आपसे पूछा है फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। ओके सो वैल्यू पुट करेंगे 2x में 2 इंटू 24 इज इक्वल टू 48 डिग्री एंड नेक्स्ट आपका है 3 इंटू 24 इज इक्वल टू 72 डिग्री। ओके फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। अच्छा दो एंगल्स तो हमने निकाल दिए, एक तो हो गया 48 डिग्री, एक हो गया 72 डिग्री। थर्ड एंगल कैसे निकलेगा? सो थर्ड एंगल आपका कैसे निकलेगा बच्चों, 180 डिग्री में से आप माइनस कर देंगे 48 प्लस 72 डिग्री को। ओके क्योंकि दो एंगल्स आपको गिवन है, दोनों को प्लस करके आप थर्ड एंगल को, दोनों एंगल्स को प्लस करेंगे और फिर 180 में से माइनस करेंगे, आपके पास थर्ड एंगल आ जाएगा। ओके सो दिस इज 120 डिग्री 60 डिग्री। ओके सो देखिए अब आपके पास तीनों एंगल्स आ गए ट्राइंगल के। ओके सो एक्सरसाइज इज गिवन ओवर हियर स्टूडेंट्स, डू इट योरसेल्फ। ओके triangle inequality. Consider a triangle ABC in which AB is equals to 6 centimeter, BC is equals to 7 centimeter and CA is equals to 5 centimeter. Scalene triangle है. Okay. So यहाँ पे देखिए AB plus BC, AB plus BC 6 plus 7 is 13 centimeter. Okay. And AB plus BC यानी इन दोनों का सम जो है इससे ग्रेटर है, is greater than AC. राइट अब हम दूसरे साइड्स को प्लस करते हैं, BC प्लस CA, BC प्लस CA इज 12 सेंटीमीटर और वो ग्रेटर है किससे, AB से। अब नेक्स्ट को हम प्लस करते हैं, AB प्लस CA 6 प्लस 5 इज 11 सेंटीमीटर विच इज ग्रेटर देन BC। ओके सो यहाँ से हमने देखिए क्या प्रूफ किया कि जो दो एंगल्स हैं, दो जो साइड्स है, दो साइड्स का सम हमेशा थर्ड से ग्रेटर होगा। ओके सो टिप्स, इन अ ट्राइंगल द एंगल ऑपोजिट द लार्जेस्ट साइड इज द लार्जेस्ट। किसी भी ट्राइंगल में जो लार्जेस्ट साइड के ऑपोजिट एंगल होगा ना वो लार्जेस्ट एंगल होगा। ओके एक्टिविटीज गिवन ओवर योर स्टूडेंट्स, आपको 3 ट्राइंगल्स बनाने हैं। ओके और जो भी आपसे यहाँ पे पूछा गया है लेंथ साइड का उन्हें आपने बताना है और फिर कंक्लूजन में बताना है वेदर द कंक्लूजन इज ट्रू और फॉल्स। ओके चलिए एग्जांपल देखते हैं। PS इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल PQR। PS जो है मीडियन है
और आपको प्रूव करना है दैट पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर इज ग्रेटर देन 2PS. ओके, सो गिवन है आपको ट्राइंगल पी क्यू और एक मीडियन है, आपको ये प्रूव करना है. और सबसे पहले हम ट्राइंगल पी क्यू एस में देखेंगे. ट्राइंगल पी क्यू एस में देखिए, पी क्यू प्लस क्यू एस इज ग्रेटर देन पी एस. ओके, इक्वेशन 1. क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जो सम होता है लेंथ का दो साइड्स का, वो ग्रेटर होता है थर्ड साइड से. अब नेक्स्ट ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल पी एस आर की, है ना. इसमें देखिए आपका पी आर सी, पी आर प्लस एस आर इज ग्रेटर देन पी एस. दिस इज इक्वेशन 2. अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं. ओके, पी क्यू प्लस क्यू एस प्लस पी आर प्लस एस आर इज ग्रेटर देन पी एस प्लस पी एस. ओके, पी एस प्लस पी एस इज 2PS. ओके, पी क्यू आपका एज इट इज रहेगा प्लस पी आर, अब इन्हें हम साथ में जोड़ लेंगे, प्लस क्यू एस प्लस एस आर इज ग्रेटर देन 2PS. अच्छा, क्यू एस प्लस एस आर, सी क्यू एस प्लस एस आर इज वॉट, क्यू आर है ना. सो पी क्यू प्लस पी आर प्लस क्यू आर इज ग्रेटर देन 2PS. ओके, और यही हमें प्रूव करना था. हैज प्रूव्ड. ओके, एग्जाम्पल 2, is it possible to draw a triangle with these sides? देखते हैं. 4 centimeter plus 5 centimeter should be greater than 6 centimeter. 9 centimeter is greater than 6 centimeter. तो ये तो हो गया ट्रू. नेक्स्ट हम ऐड करते हैं 5 और 6 को. 5 centimeter plus 6 centimeter should be greater than 4 centimeter. 11 centimeter is greater than 4 centimeter. This is also true. Next, 4 centimeter plus 6 centimeter should be greater than 5 centimeter. So 10 centimeter is greater than 5 centimeter. So ये भी क्या हो गया, ट्रू. So तीनों ही केसेस में क्या था कि जो सम ऑफ लेंथ है टू साइड्स का वो थर्ड से ग्रेटर है. ओके, तो दैट मीन्स पॉसिबल है इससे ट्राइंगल बनाना. ओके, सो सिमिलरली यू विल डू अदर पार्ट ऑल्सो. ओके, एंड एक्सरसाइज इज गिवन ओवर योर, डू इट योरसेल्फ. ओके, Pythagoras theorem. Pythagoras theorem is applicable only in right angled triangle. Pythagoras theorem सिर्फ right angle triangle में ही आपकी applicable है. So in the joining figure, triangle PQR is a right angled triangle, right angle at Q. PQR, ये Q पे right angled है. So then ये जो PR आपकी लंबी साइड है ना, PR का स्क्वायर हो जाएगा PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर. Or you can say this is hypotenuse, this is base, this is perpendicular. H square is equals to P square plus B square. Okay, where H is known as hypotenuse, P is known as perpendicular, and B is known as base. Okay, tips. Ancient Indian mathematician also knew the Pythagoras theorem. The Katyan Subhasutra written in 200 BC gives its equivalent version. The rope which is stretched along the length of the diagonal of a rectangle produces an area that is equal to the area made by the vertical and the horizontal sides together. Ancient Indian जो mathematician थे उनको भी Pythagoras theorem के बारे में पता था. तो एक कात्यायन शुभ सूत्र है जो 200 BC में लिखा गया था, वो भी इक्विवेलेंट है इस वर्जन के, मीन्स Pythagoras theorem के. ओके, एक्टिविटी 2 इज गिवन ओवर हियर. आपको क्या करना है बच्चों, 3 राइट एंगल्स बनाने हैं डिफरेंट, जैसे दिखाया गया है डिफरेंट मेजरमेंट के राइट एंगल एट सी, एंड फिर कुछ आपके पास यहाँ पे आपने कैलकुलेशन करके इसमें लिखना है जो भी आपसे पूछा गया. ओके, नाउ कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. If the square of one side of a triangle is equal to the sum of the squares of the other two sides, then the angle opposite to first side is a right angle. So consider a triangle PQR in which PQ आपका given है 8 centimeter, QR है 6 centimeter and PR है 10 centimeter. So longest, see PQ is how much? 8 square plus this is QR is 6 centimeter, 6 square and this is 10 square. Okay, so equal आ गया आपके 100 centimeter square is equals to 100 centimeter square. Now, if we construct a triangle PQR and measure angle Q, you will find that angle Q is 90 degree. अगर आप angle Q आप PQR को triangle PQR को construct करते हैं ना और angle Q को आप measure करेंगे तो angle Q आपका 90 degree आएगा. Okay?
Pythagorean triplets, 3 positive numbers a, b and c in such a order that c square is equals to a square plus b square. Okay, then a, b, c are called Pythagorean triplets. For example, ये आपके Pythagorean triplets हैं. Okay, मतलब c square should be equals to a square plus b square. चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. डिटरमिन वेदर द ट्राइंगल हुज लेंथ ऑफ साइड्स आर गिवन बिलो राइट ट्राइंगल और नॉट. ओके, सो इसमें बड़ी साइड देखिए 13 सेंटीमीटर है. ओके, सो 13 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. 13 का स्क्वायर होता है बच्चों 169, 5 का स्क्वायर होता है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 का होता है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर. So 169 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये भी आपका आ जाएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, दैट मीन्स द ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल. ओके, सो सिमिलरली आप बी पार्ट को भी प्रूव करेंगे कि वेदर द ट्रायंगल इज राइट ट्रायंगल और नॉट. ओके, एग्जाम्पल 2 देखते हैं. The lengths of the side of a right triangle are 12 centimeter and 16 centimeter. Find the length of its hypotenuse. Okay, आपको hypotenuse की length निकालनी है. We don't know this height. Okay, so let A, B, C. Okay, ये आपका एक है 16 centimeter, एक है आपका 12 centimeter. We have to find this AC. So AC square is equals to AB square plus BC square. ओके, ए बी इज 12 स्क्वायर प्लस सेंटीमीटर भी है, सेंटीमीटर हम लास्ट में लिखेंगे, बी सी 16 का स्क्वायर. ओके, 12 का स्क्वायर होता है बच्चों 144, ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और 16 का हो जाता है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब दोनों को प्लस करेंगे सो विल गेट 400 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, अब 400 बच्चों किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 20 का स्क्वायर. ओके, सेंटीमीटर, ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 20 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, सो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो AC आ जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर. यानी जो हाइपोटेन्यूज है बच्चों वो है आपकी 20 सेंटीमीटर. ओके, सो इसी तरह से आपने बाकी एग्जाम्पल्स की भी प्रैक्टिस करनी है. ओके, एग्जाम्पल 8 देखते हैं बच्चों. Neeraj goes 70 meter due east, then turns and goes 24 meter due north. How far is he from the starting point? नीरज देखिए 70 मीटर ईस्ट जाता है, फिर वहाँ से टर्न होता है, फिर 24 मीटर नॉर्थ की तरफ जाता है. तो वो कितना दूर है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से. सो हम एक स्टार्टिंग पॉइंट उसका ले लेंगे A. पहले हम इस तरह से डायरेक्शंस बनाते हैं. दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट. ओके, सो हमने लिया स्टार्टिंग पॉइंट A और फिर वो जाता है 70 मीटर. फॉर एग्जाम्पल दिस इज A पॉइंट. ओके, और वो 70 मीटर जाता है ईस्ट की तरफ, एंड देन वो टर्न होता है और कहाँ जाता है, एक C पॉइंट पे पहुँचता है और फिर वो नॉर्थ की तरफ जाता है. ओके, और इस पॉइंट को हम B मान लेते हैं. सो ये पॉइंट है आपका 24 मीटर गया. अब उसने कहा कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, अभी वो यहाँ पर है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, ए बी हमें फाइंड करना पड़ेगा. मीन्स हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी पड़ेगी. सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर. ओके, बी सी इज 24 मीटर स्क्वायर प्लस ए सी 70 मीटर स्क्वायर. 24 का स्क्वायर होता है बच्चों 576 मीटर स्क्वायर. 70 का होगा, 7 का स्क्वायर होता है 49, 2 zeros लगा देंगे. सो टोटल आपके पास आ जाएगा 5476 मीटर स्क्वायर, एंड वी हैव टू फाइंड द ए बी स्क्वायर. अब ये स्क्वायर किसका होता है, ये स्क्वायर होता है बच्चों 74 का. स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, सो ए बी इज इक्वल्स टू 74 मीटर. ए बी मीन्स दिस पॉइंट. सो वो अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, 74 मीटर फार फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. ओके, so example 9 is there. इसकी practice आप खुद से करेंगे, and also do this exercise and keep doing practice of this chapter.